How do you see wellness yourself? What does it mean to you? My soul is in one place and I'm able to think clearly, able to do my work very well. I'm not facing issues with my health issues and all. That's called as wellness for me. Hot tub actually करता क्या है? What it does to your body? How it calms down your mind, or what it really does? Hot tub is a mixture of numerous massages. बॉडी का कोई पार्ट नहीं बचा जहाँ वो मसाज नहीं कर रहा है, ठीक है. एंड दैट मसाज यू आर गेटिंग इट वंस यू आर इनसाइड द हॉट टब. सो मैनी पीपल दोज हु हैव इनसोम्निया की इश्यूज हैं, ठीक है. यू सिट इन अ हॉट टब फॉर 10 to 20 minutes एंड रात में आपको जो नींद आने वाली है, दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ योर बेस्ट स्लीप्स. तो येस पेन, येस गेन, नो पेन एंड रेडी टू गेन. तो ऐसा चेंज हो जाएगा. Hi everyone, welcome to a very new episode of the Ayush Podcast. Today we have Deepika Dwivedi on the show. Deepika दुबई से आई हैं. इनका दुबई में बहुत अच्छा बिजनेस है. दुबई में ही नहीं, यूरोप में भी है. आज हम दीपिका से समझेंगे कि कैसे एक फीमेल एंटरप्रेन्योर बड़ा बिजनेस बिल्ड किया इन्होंने अपनी जर्नी में, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, किसके लिए हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट ऑल. हाय दीपिका, वेलकम टू द पॉडकास्ट. हाय आयुष, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया. आप कैसे हो ये बताइए? I'm very fine. Absolutely fantastic to be here in Delhi. और nice weather. Yeah, better than तो Dubai's. No, Dubai is still excellent. दुबई में अभी बहुत अच्छा weather है actually. It's wonderful, like very nice breeze, not Yeah. really hot. Okay. Obviously, we're gonna welcome the summer very soon. Yeah. But it's wonderful there. Yeah. It's my favorite place. Right. And we'll get to that in a few minutes as well. But before that, Deepika, now that I know you're in the line of wellness, you're in the line of health, right? How do you see wellness yourself? What does it mean to you? Wellness is being oneself for me, you know. It's mostly knowing myself, aligning, and then when my mind, my body, my soul is in one place and I'm able to think clearly, able to do my work very well. I'm not facing issues with my health issues and all. That's called wellness for me. Okay. And obviously living really long, you know. I don't want to die very soon with a heart attack or any unexpected way. For me is I want to decide how I want to go. I don't want any unexpected situations to decide how I want to go. So that is wellness. Especially I've seen my grandparents. I've seen them deciding. I've seen them living their life to the fullest and deciding when they are going. So it's very different. When you say deciding means Taking control of your life. yeah, completely. They know that when they are going to go. Yeah. Okay, and they are literally informing us in advance that okay, fine, just after a few days I will not be there. You know, they didn't suffer with any kind of illness. They didn't suffer any unexpected issues. You know, so I'm not talking about the situations, but especially the illness. I don't want to go through all those things. So for me, being in control, thinking clearly, able to enjoy my life, able to enjoy my family, able to enjoy my work is wellness. And that is not possible without the work what I am doing currently, and I'm trying to convey to the world about the wellness. I mean, beyond the physical, how do you see wellness impacting your relationships, your day-to-day life? Hugely, you know, because prior to being in my company, like starting this company, Hot Tub Cart, I was into HR. Okay. And then when you are taking care of a lot of people, doing lots of payroll, hiring, firing, you go through that stress, which is immense. And you know, when you come back home, and after coming back, you need hours actually to compose yourself and to come into that mindset and then talk to or listen very well to your family members. Okay. So coming out of that stress, and then now when we are I have completely focused on myself, it has changed my relationship because I am present in that moment when my partner is talking to me.
Okay, I am present in that moment when my daughter is asking me, okay mom, I want to play with you, even I have come from the whole day of work. Okay, now I'm able to focus on her completely with one mindset. It's not like my body is one place, my soul is in another, and my mind is somewhere else. So that's what is wellness, or my physical or mental well-being has given me. It has completely changed my life meaning, actually. You know, बिफोर आई वाज लाइक ओके, फैमिली तो है ही, अब फैमिली ही है, इसी के लिए ही सब कुछ करना है। अगर मैं इसके लिए नहीं कर सकती हूँ तो आई एम नॉट इन अ राइट बिजनेस, यू नो, फॉर मी, कि अभी आप काम खत्म करो और अपनी फैमिली को टाइम दो. सो दैट्स व्हाट wellness has done to me. Like अभी बॉडी, when I do exercise, when I am doing hot tubbing, ठीक है, उस टाइम पे भी मेरी फैमिली जो मेरे साथ है, वी आर enjoying the hot tub. So those are the memories which we are creating together, and that's what, when my daughter grows up, is going to remember. She Yeah. won't remember what I bought or how many hours did I give it in my office. She will remember what memories I did. I was there when she needed me, you know, when it. तो अगर मैं फिजिकली और मेंटली स्टेबल नहीं हूँ तो आई वोंट बी एबल टू गिव इट दैट. एंड आई थिंक सो किसी भी रिलेशनशिप के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स आई हैव सीन, बिकॉज व्हेन यू आर मेंटली नॉट देयर, you start to drift apart from your family members, from your partner. So it's very, very important to be present in that moment mentally. And अगर physically आप नहीं हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते, you know. So Well, I love the way you described how it has been for you, and I also see कि आजकल individuals who are just starting their career, they are not able to maintain it all. They're not able to manage it all. They're in stress. They take things, like so much seriously while they don't need to do it. Uh, and I think the youth today are not focusing on their wellness. They're missing out, in my opinion. Well, coming back to my interesting question, which is, you cared for yourself, you took control of your life, for your family and everything. Um, you went beyond it and you created products, you created a brand that is helping others do the same. If you can share the journey, how did you start it, Hot Tub Cart, and what it is really, who is it for? That would be interesting to know. so it's a very, very interesting journey, actually. Hot Tub Cart started with one of my friend. I was doing my job, and as a side hustle he started, you know, getting the hot tubs and then trying to give it to the clients, because hot tub, just before 10 to 15 years back, it was the product only for super premium clients. Okay, जैसे अभी अंबानी जी हैं, ठीक है, he could afford at that time, you know. तो that journey started, and when I saw कि एक hot tub से 2 hot tub हुए, तो and the stress which I was also going through, and this is a wellness product, so I decided कि ठीक है, let's quit and join him. And that was his side hustle, but I started and I took it further, and then he focused on his job. So I took that business completely. Okay. So that wellness, it started with a motive of how can we make it affordable. क्योंकि अंबानी जी तो कैन अफोर्ड एवरीथिंग, ठीक है, बट व्हाट अबाउट अदर्स. ठीक है, अभी कार है या मोबाइल फोन है, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ सुपर लग्जरी ओनली फॉर वेरी वेरी एक्सट्रीमली लाइट क्लास पीपल, बट आज फोन सबके हाथ में है, फ्रॉम किड टू द पर्सन हु इज ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई, सबके हाथ में है. इट इज नो मोर अ लग्जरी, इट्स नो मोर अ प्रीमियम प्रोडक्ट, you know, it's a necessity right now. You can't live without phone, and that's what my motive is. The hot tub should be in everyone's house, okay, and we are trying to make it affordable as much as we can, so that people can enjoy this well-being, you know, because hot tub really, really, really contributes to one's life a lot,
a lot. If you are super tired, or especially in India जहाँ पे लोग इतना बाइक और कार चलाते हैं, आधा दिन तो उनका सिर्फ ट्रैफिक में ही जाता है, आधा ही दिन काम कर पाते हैं. उसके बाद जब घर पहुंचो तो उनका एक ही होता है, आ मेरी कमर. तो ये कमर है ना, कमरा ना बन जाए और ये कमर इंटैक्ट रहे, तो उसके लिए हॉट टब बहुत ज़रूरी है. और ये हॉट टब जब सब घर में होने लगेगा एज अ नॉर्मल अफोर्डेबल प्रोडक्ट हो जाएगा, आई थिंक सो दैट डे आई विल feel that yes, I have succeeded. Very interesting. I think you figured out your own strength while you started with your friend, right? And I think he must have figured out his own strength while doing the job. Now that you have taken it so much further, मुझे ये समझना है कि hot tub actually करता क्या है? What it does to your body? How it calms down your mind, or what it really does? Hot tub is a mixture of numerous massages. ओके अभी आप मसाज अगर लेने जाते हो, पूरे दिन थक गए हो, आप मसाज लेने जाते हो कहीं पे भी, 400 500 800 रुपये का मिनिमम एक बेसिक मसाज मेरे ख्याल से मिलता है यहाँ इंडिया में. तो अगर आप वो लेने जाते नहीं, हो, I mean उससे ज़्यादा ही होगा. हाँ तो फिर शायद 15 या 2000, मुझे हाँ, पता I नहीं think है यहाँ that's का रेंज. something like that. तो अब एक जगह लोगे आप थाई मसाज, फिर जापानीज मसाज, फिर कोरियन मसाज, फिर केरला मसाज, फिर ठीक है. Yep. तो आपने एक ही बार में 5 से 10 हज़ार लगा दिया. अब आप क्या ये 10,000 रुपये रोज़ खर्चा कर सकते हो? क्योंकि आप तो रोज़ टायर्ड हो रहे हो ना. मसाज तो आपकी बॉडी को चाहिए, उसको ब्लड को तो सर्कुलेट करना ज़रूरी है, एंड इट्स सर्कुलेटिंग इन इट्स ओन पेस. ओके, बट समटाइम्स यू हैव टू रन फास्टर, ओके, टू ब्रिंग दैट एक्साइटमेंट इन योर बॉडी सो दैट इट स्टेज इन इट्स प्लेस, यू नो. वरना एक मशीन धीरे 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 चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ, कुछ भी उसमें नया नहीं हो रहा है. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी डाई बिफोर वी सपोज टू डाई. ठीक है, अगर 80 में हमें जाना है तो हम 60 में ही चले जाएंगे. ठीक है, तो अभी हॉट टब क्या करता है कि जब आप हॉट टब में एक 38 to 40 डिग्रीज की डिग्री सेल्सियस का हम पानी वार्म रखते हैं. ठीक है, वार्म टू हॉट साइड पे हल्का. एंड इफ यू विल ऑब्जर्व, व्हेन यू टेक अ वार्म वाटर shower in the morning, your body automatically feels calm. ठीक है, उस टाइम पे बहुत है बॉडी, इट्स लाइट. आप के बॉडी में अगर कितने एक्स रहे हैं, दर्द रहा है, और अगर आप नहा रहे हो सुबह सुबह वार्म वाटर से, तो आपको तब भी काफ़ी दर्द का रिलैक्सेशन होता है. अब आप उसमें जब हॉट टब में हम बैठते हैं तो फ्रॉम योर नेक, शोल्डर, बैक पॉइंट्स, लोअर बैक्स, दी बोन जो है, हिप मसाज, फुट मसाज, काफ मसाज, थाई मसाज, हैंड्स, पाम, बॉडी का कोई पार्ट नहीं बचा जहाँ वो मसाज नहीं कर रहा है. ठीक है, एंड दैट मसाज यू आर गेटिंग इट वंस यू आर इनसाइड द हॉट टब विद अ प्रेस ऑफ अ बटन. यू डोंट हैव टू ट्रैवल एनीवेयर. 25 30 40 मिनट का कोई सफ़र नहीं करना, ट्रैफिक में 2.5 घंटे फंसना नहीं है हमें. ठीक है, जाना और वो बाहर जो मसाज हम लेके फिर वापस घर, जो वो 2.5 घंटे में ट्रैफिक में फंस के घर पहुँचते हैं, वो मसाज ख़त्म. ठीक है, यू आर डन. तो हॉट टब क्या करता है कि व्हेन यू आर टेकिंग सिटिंग, यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड, व्हेन यू आर इनसाइड दिस मिक्सचर ऑफ वार्म वाटर एंड द मसाज, ओके, इट विल हेल्प रिलैक्स योर मसल्स अ लॉट. इट विल calm your mind, okay, it will give you extreme clarity of thoughts. ठीक है, एंड जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, it will bring your body, mind and soul in one place. It will align completely. So many people, those who have insomnia की issues हैं, ठीक है, you sit in a hot tub for 10 to 20 minutes and रात में आपको जो नींद आने वाली है, that's going to be one of your best sleeps. और जब आपको नींद पूरी मिली है, जब आपको अच्छे से आप 8 घंटे 10 घंटे सोए हो और सुबह अगर आप उठ रहे हो, you are a fresh person, again ready to go for that war है, या फिर लाइफ के जितने भी स्ट्रगल्स हैं, you are ready now because your mind is extremely relaxed, your body is relaxed. What else is needed? So hot tub changes you completely. In one word, it changes you. It's like you become free person again to fight with the world or fight with your situations again. I love the fact that we're talking about wellness here. We're talking about holistic wellness, and
things that really matter for our body, not just from outside but from inside, right? At the end of the day, that's where people need to focus, that's where people need to work on. The question is कि ये जो पूरा हॉट टब का जो एक कल्चर हुआ है, और ये कहाँ से आ रहा है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, व्हेन डिड इट रियली स्टार्टेड एंड वेयर डिड इट स्टार्टेड? So hot tub का culture, if you will go to Europe, okay, it's a very cold. These are very cold countries, right? तो इन कंट्रीज में जब आप स्पेशली कोल्डर टाइम्स में रहोगे, हाउ कैन यू गो आउट, हाउ कैन यू एंजॉय? ओके, तो अगर आप रूम में जनरली दे वर पुटिंग हीटर्स, ओके, हम अपने यहाँ पे भी अगर आप देखो बहुत पहले से तो चूल्हे के ऊपर है ना गर्म पानी किया जाता था, फिर हम नहाते थे, राइट। ठीक है, तो ये वहीं से ही शुरू हुआ है, ठीक है, बहुत पहले से। इवन यूरोप में तो हर जगह हॉट टब है, हर जगह हॉट टब है। इफ़ यू हैव अ विला, ठीक है, यू नीड टू हैव अ हॉट टब, ठीक है, किसी भी टाइप का हो, बट यू हैव टू हैव अ हॉट टब, ठीक है। तो ये कल्चर जनरली वहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। एंड दुबई जैसी कंट्री विच इज़ जनरली कॉल्ड एज अ हॉट country is thriving on hot tubs. Being a hot country is also thriving on hot tubs. तो I was amazed कि इंडिया में क्यों नहीं है। यहाँ हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर हर टाइप के वेदर है, ठीक है। अभी 3 महीने 4 महीने एक्सट्रीम हमारी ठंडी हो जाती है, फिर हमारे ऑटम सीजन में, फिर हमारे पास समर है, हमारे पास 3 से 4 क्लाइमेट्स हैं, और हमारे पास हॉट टब नहीं है। इंडिया में वी टॉक, वी वांट टू बी अहेड ऑफ एवरीथिंग, बट इन दिस सिनेरियो वी आर मिसिंग आउट, वी आर I will say laid back or step back. Yeah. We are not in front, or we haven't gotten the exposure yet. There are no platforms like you have, because it's one of the first few to come in India, isn't it? It is, yeah. It is. It is not. It's still like Tesla है, जैसे Tesla आई नहीं अभी इंडिया में, ठीक है। Yeah, it's still new to the place, but I don't know why it is new to the place yet. This is the thing, because we shouldn't be behind on wellness, especially when we are very much ahead with yoga. We gave yoga to the world, right? We gave meditation to the world, right? We talk about holistic healings to the world. We are into Ayurveda. Then why हम लोग ने अपने आप को पीछे छोड़ दिया है यार, जब हमने दुनिया को ये चीज़ें दी हैं, ठीक है, तो फिर हम अपने को क्यों नहीं केयर कर रहे हैं? ये ऐसा हो गया कि मैंने अपना कोहिनूर निकाला, जाके बाहर दे दिया, ठीक है, अब वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, अब हम ठन गोपाल हो गए, ठीक है। तो why should we be that way, right? We need to have that kind of I want to give things to you, but I need to save it for myself also ना। तो हमने सेव नहीं करी, और हमने अपने आप को अनजान रखा इन चीज़ों में। तो we don't need to be remain like that. All right, I absolutely agree here with you again. अगर हम और समझें कि ये जो हॉट टब है, इसको कैसे इंडिया में और ज़्यादा अडेप्शन बढ़ाया जा सकता है, या फिर इसको हाउ मच डज इट यूजली कॉस्ट, एंड ये कितने लोगों के लिए होता है? इफ़ यू कैन गिव मी सम स्पेसिफिक्स, लाइक सो दैट पीपल वुड नो कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम किस इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस शुड हैव सम कंटेक्स्ट। तो अभी एक्चुअली क्या है कि हॉट टब कैन बी फ्रॉम 1 person until 8, 10, 12 और n numbers you can say. I won't say 100 people and all, but ठीक है, पार्टीज हो जाती हैं हॉट टब में। तो हॉट टब इज़ नॉट ओनली फॉर वेलनेस, टू बी वेरी फ्रैंक। हॉट टब इज़ अ सुपर लग्जरी स्टफ, ठीक है। यू एंजॉय, you throw parties, you are obviously gaining a lot of mental oneness, you know. तो ये सब चीज़ें हैं, you get it, but hot tub is not very boring. A hot tub is not boring at all. जिसके घर में hot tub है ना, that person will be a talk of the town. इस तरीके से वो उस घर में तो पार्टियाँ होनी चाहिए,
ठीक है, इस तरीके से हॉट टब होता है। और हॉट टब एक्चुअली बाथरूम से लेके बालकनी पर, रूफ टॉप पे, गार्डन में, आपके लाउंज एरिया में, हर जगह लगा सकते हैं। उसकी कोई मतलब कोई लिमिटेशन नहीं कि हम छत पे नहीं रख सकते, कि हम यहाँ नहीं रख सकते, सब जगह रख सकते हैं। और जिस घर में 2 से 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, जनरली हम 2, हमारे 2 जो हैं, ठीक है, तो उनके लिए 3 to 4 पर्सन का हॉट टब इज़ एक्सट्रीमली गुड। इंडिया में इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको एक्सपोजर कैसे दिया जाए, इज इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, एथलीट्स हैं, जिमनास्टिक जो करते हैं, जिम जो जाते हैं, तो जिम क्लब्स हैं, वहाँ से उसको शुरू किया जा सकता है। आप जिम में लॉट ऑफ एक्सरसाइज करते हो तो मसल सोरनेस इज अ पार्ट, नो पेन नो गेन, हर जिम का एक टैगलाइन होता है। तो फिर अगर हॉट टब डाल दो तो येस पेन, येस गेन, नो पेन एंड रेडी टू गेन, तो ऐसा चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंडेटरी है, जैसे अभी दुबई में है, अगर आप देखो तो दुबई में जिम हैज द वे जिम यूज्ड टू ऑपरेट हैज कम्प्लीटली चेंज्ड। जिम्स हैव बिकम अ वेलनेस सेंटर्स नाउ। तो हर जिम में सिर्फ हॉट टब ही नहीं है, सोना, स्टीम, हॉट टब, कोल्ड प्लंज, ये 4 चीज़ें along with those gym equipments are there, so they are completely changing। तो अभी क्या हो रहा है कि स्पोर्ट्स क्लब में आपने डाल दिया, बिकॉज वहाँ पे है ना इतने एथलीट्स आते हैं। ऑब्वियसली आफ्टर आप स्क्वैश खेल रहे हो, इंडिया में स्क्वैश, दिल्ली में तो स्क्वैश बहुत ज़्यादा चलता है मेरे ख्याल से। फिर आप बैडमिंटन बहुत खेलते हो, तो यहाँ पे शोल्डर सोरनेस बहुत ज़्यादा होती है, रिस्ट सोरनेस बहुत ज़्यादा है। पिकल बॉल इज देयर, पेडल इज देयर। आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आपके एंकल गए, ठीक है, यू आर अ रनर, आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ चाहिए, तो हाउ विल यू गेन दैट स्ट्रेंथ? अगर आप पूरे दिन है ना इतनी मेहनत करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद अगले दिन कैसे उठोगे अगर इतनी दर्द में रहोगे तो? और फिर अगर आप करने जा रहे हो तो उसको तो रेस्ट तो करना है ना। हम खाना खाते हैं तो हम सोते क्यों हैं? God has created a sleep to give our body some rest, right? The hot tub is also doing the same thing. It cannot replace the sleep, okay, but throughout the day you need to give break to your body. तो अगर 10 मिनट में आपको अपने घर में या मतलब क्लब में ही है अगर आप, and you are doing gym, you are playing numerous tournaments or practice matches, take 10 minutes, sit in a hot tub or do a contrast therapy, जैसे hot tub and cold plunge together, around 10 to 20 minutes in hot tub, 2 to 3 minutes in cold tub, and then so that is going to build the stamina and give you a longevity. Okay, you will have more vitality, and then so these 2 places are the starting points where you can start. And मैं एक यहाँ पे ना किसी से बात करी थी इन मुंबई, तो वहाँ पे वी वर थिंकिंग देर इज़ वन मोर फास्टेस्ट वे ऑफ ब्रिंगिंग दी हॉट टब्स और कोल्ड प्लंजेस आर द चैलेंजेस, यू नो, लाइक इन दुबई में होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई भी मैराथॉन्स हो रहे हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स चीज़ें हो रही हैं, या इवन नियर द बीचेस देयर आर आइस, इफ यू रिमेंबर आइस बकेट चैलेंज, थ्रू आउट द वर्ल्ड में वो पूरा क्रेजी की तरह हुआ था, राइट? सब कोई घर में बाल्टी लेके बर्फ डाल के अपने ऊपर डाल रहा था। सो व्हाट वाज दैट? दैट इज द कोल्ड tub therapy, you know, that's a cold plunge therapy, cold therapy. So that is what is must needed, you know. And same way these kind of challenges can be created. Events, Delhi, Mumbai, Bangalore, it's a place of money, right? यहाँ पे तो पूरी दुनिया में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इस सीन है कि जैसे आसमान से पैसे गिरते हैं ऐसे देखेंगे तो फिर क्यों नहीं हम लाइफ की वो सारी चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं? तो put the hot tub in events, man. Do something unique like this. What put the hot tub in events, and then you will be like a different thing. Right. I also have another interesting question.
and I'm genuinely curious to know about it. So the question is, you're a mom, right? And especially for females who have a different body from a male, right? They have different challenges on their own, a different lifestyle, different hormones. Is it more beneficial for women, let's just say during postpartum or during pregnancy, or even while they're going through periods, hot flashes? Is it Yeah, more beneficial for them during it that? is. It is. Because when the ladies are going through the menstrual cycle, उस टाइम पे हम लोग अगर होम रेमेडी करते हैं, एक तो जिंजर टी वगैरह पीते हैं, हॉट बैग्स यूज करते हैं, Yeah. कमर का पेन खत्म करने के लिए, पेट को ये करने के लिए, ठीक है. तो इट्स वेरी गुड टू, बिकॉज दैट्स व्हाट सम हाउ वी आर एक्चुअली. हॉट बैग रख के भी हम उस चीज़ को रिलैक्सेशन दे रहे हैं. एंड इवन आफ्टर वर्ड्स, when you are done with the menstrual cycle, when you go in that, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ड्रेन हो चुकी होती है, एंड उसको रेजुविनेट करने के लिए when you are into the hot tub, it is super beneficial. And I will share you my own journey when I was with my baby in my womb. ठीक है, तो उस टाइम पे डॉक्टर आस्क्ड मी, आपको एक्टिव रहना चाहिए, यू हैव टू वॉक. तो since I was doing it, I used to walk 8 kilometers. I never had that strength prior to walk 8 kilometers at a stretch. But carrying my baby on 8 to 9 months, I don't know मुझे कहाँ से वो सुपर पावर्स मिली थी, या ये हॉट टब भी था, ठीक है, जो उस टाइम पर रियलाइज नहीं किया मैंने. I was walking 8 kilometers at that time at a stretch, ठीक है, every day. और जब अब आप बहुत ज़्यादा जिम नहीं कर सकते 8-9 मंथ में, राइट, तो हॉट टब में बैठे हैं. ये स्विम स्पास हैं जनरली, दैट्स व्हाट माय कंपनी आल्सो प्रोवाइड्स. स्विम स्पा में यू कैन डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, ओके, एंड दैट वाज मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू डूइंग अ फिजिकल एक्सरसाइज. अगर आप 8 किलोमीटर जैसे वॉक कर रहे हो फिजिकली, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पैरों में दर्द आ जाता है, सूजन आ जाती है. बट व्हेन यू आर डूइंग लॉट ऑफ वाटर एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो वाटर एक्सरसाइजेस क्या करते हैं कि आपके बॉडी पे एक तो स्ट्रेन नहीं है, फिजिकल स्ट्रेन नहीं, बिकॉज ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, और आप फ्लोट करते हो पानी में. तो उस टाइम पे लाइट स्विमिंग करना, उस टाइम पे ना वाटर एक्सरसाइजेस करना, दैट आर वेरी वेरी गुड, दैट इज़ वेरी गुड. एंड क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टिंग से लाइक 3rd month 4th month ऑनवर्ड से आई वॉज इन टू माई स्विम स्पा. तो स्विम स्पा के अंदर वॉक करना, उसके अंदर स्क्वाटिंग करना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता था मेरा. एंड देन उस टाइम पे है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे अपने 2nd ट्राइमेस्टर में जाते हैं, 3rd में जाते हैं, तो हमें बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है. तो गेटिंग दी प्रेशर मसाज इन द हॉट टब really 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 helps you so much, क्योंकि आप खुद ही समझ लो ना कि अब आप यहाँ पे 5 kg का वजन लेके चल रहे हो, ठीक है, 4 kg का वजन लेके चल रहे हो. भगवान ने तो हमें उतने ही पैर दिए, उसके हिसाब से तो इतने बड़े पैर कर नहीं दिए, बड़े ही नहीं हुए हमारे पैर, तो बड़े हुए नहीं, तो पर हमारे पास वजन तो आ गया ना. अब उसको जब आप डेली लाइफ में लेके चलते रहते हो, काम करते रहते हो, ठीक है, आपको झुकना मुश्किल है, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी कम हो जाती हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो स्विम स्पा जो है उस टाइम पे, क्योंकि स्विम स्पाज आर अ मिक्सचर ऑफ हॉट टब एज वेल एज द स्विमिंग पूल, ठीक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ दैट. एंड आप अगर जब वो कर रहे होते हो, the benefits are immense. I went through normal delivery, okay, and I didn't go through like extreme pain, or like it was fine, wonderful for me. My experience through that was extremely good. Yeah. Okay. Very interesting. Glad that you did it during that phase. And I think now that everyone knows, one can experience, one can, bring in the same change in their life during the phase. So my other question is कि हमने हॉट टब की बात की, हमने स्विम स्पा की बात की, हमने
कोल्ड प्लंजेस की बात की और हमने सोनास की बात की. फॉर नॉर्मल पर्सन टू अंडरस्टैंड इट इजीली, इन चारों में डिफरेंस क्या है और कौन सा किसके लिए है? तो सोना, स्टीम, हॉट टब, कोल्ड प्लंज, स्विम स्पा, ये एक्चुअली सबके लिए है, ठीक है, सबको यूज़ करना चाहिए. तो सोना क्या होता है कि व्हेन यू नो ऑन अ हायर टेम्परेचर, ठीक है, एट दैट टाइम व्हेन यू आर सिटिंग इन अ रूम, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो जो बॉडी के फैट्स वगैरह हैं वो थोड़े से बर्न होते हैं उस टाइम पे. ओके, सो द सोना, ठीक है. और जब रही बात हॉट टब की, स्विम स्पास की, तो हॉट टब इट्स अ मसाज सिस्टम इन हॉट वाटर, इन अ वेरी बेसिक लेमन टर्म्स में, ठीक है. ये स्विम स्पा है जहाँ पे आप यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉट टब एंड स्विमिंग और जस्ट दी pool, but it's a portable one. You don't need to construct a pool over here in your house, okay, if you don't have space. Okay, it's a portable, you can take it anywhere and you can use it anywhere. So that's the swim spa is. Now cold plunge is completely opposite to the hot tubs. Cold plunge helps you with the muscle recovery, you know, and you just need 2 to 3 minutes or max 5 minutes in a cold plunge, you know, to go in and be out. So that's the main difference and that's what is very important actually. So that's why I say कि किसी को सिर्फ सोना करने की ज़रूरत नहीं है. If you're doing a contrast therapy or if you're doing a hot or cold, ठीक है, then it's fantastic. ये वैसे हो गया कि जैसे मुझे अभी नमक खाना है पर मुझे दाल भी खानी है, चावल भी खानी है, रोटी भी खानी है, सब्जी भी खानी है, इसी तरीके में. तो अगर आप कोई भी एक चीज़ को हटा देते हो तो यू आर ऑब्वियसली ईटिंग, ठीक है, पर यू आर नॉट गेटिंग द टेस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ एवरीथिंग. तो जो बंदा अफोर्ड कर सकता है चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें, तो इट्स वंडरफुल. बट इफ़ यू कांट अफोर्ड इट, ठीक है, तो हॉट टब डज वंडर्स टू आवर बॉडी. एंड अगर हॉट एंड कोल्ड थेरेपी कर सकते हो तो व्हाई नॉट. So, the thing is, India is changing. India's wellness industry is changing and booming. अगले 5 से 10 साल में जिन टॉपिक्स पे आज हम बात कर रहे हैं, हम 5 साल पहले नहीं कर रहे थे. और अगले 5 साल बाद जब हम बात करेंगे इन टॉपिक्स पे, तो तब तक अडेप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे. I'm assuming easily हर 10 से 15 घर में ये सारी इक्विपमेंट, सारे फैसिलिटीज़ आ जाएंगे और हमारे आसपास, हमारे विसिनिटी में ज़रूर आ जाएंगे. That's how I look at it, right? Because at the end, it is part of the holistic wellness, and India is already there. It has been there in the first place when we say yoga, Ayurveda, all these things, coming from our Vedas. तो the question is कि हम जब आने वाले वक्त में ये सारे प्रोडक्ट्स easily available होंगे, लोग इसको यूज़ करने लगेंगे, तो how can they integrate it in their daily routine while we have yoga and Ayurveda and other therapy methods of meditation and much more? तो see, once things becomes affordable, okay, it becomes easier for people to have it, ठीक है. तो just especially in terms of hot tubbing, in terms of pool है जो, अगर आप देखो आज से कुछ साल पहले तक या 10 साल पहले तक, 10 से 20 साल पहले तक, जब अपार्टमेंट्स बनते थे तो सिर्फ फोकस अपार्टमेंट पे होता था, उसके आसपास के एमिनिटीज़ पे उतना फोकस नहीं होता था. बिल्डिंग बना दी और लोगों ने जाके, है ना, सस्ता टिकाऊ मिल रही है, जाके रह लो. अब जब बिल्डिंग बनती है और लोग वहाँ आते हैं तो उनको बिल्डिंग में जाने से पहले वो नीचे का राउंड लेते हैं कि यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे क्या हेल्थ क्लब्स हैं, यहाँ कोई जिम है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या गार्डन्स हैं बच्चों के खेलने के लिए. तो नाउ पहले एक मेन होता था कि मुझे घर चाहिए, रोटी, कपड़ा, घर, यही बोला चाहिए था, ठीक है ना, और खाना, ये हमारी मेन बेसिक नेसेसिटीज़ थी. अब ये चारों ने तो बहुत ज़्यादा बैक सीट ले लिया. अब हमारे होता है कि हमें क्या मिल रहा है, क्या बेनिफिट, मेरा बच्चा आसपास के स्कूल में जा सकता है कि नहीं, ठीक है,
मुझे यहाँ जिम मिल रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे सोना, ओ इस बिल्डिंग में ना सोना स्टीम भी है बट एट द सेम प्राइस, राइट। ओ इस बिल्डिंग में है ना यार जकूजी भी है, ये क्या कहते हैं हॉट टब्स भी हैं, कोल्ड प्लंजर्स भी हैं। तो यू टेल मी कि विच प्लेस would you like to go if you don't even have to pay, say, like if you don't have to pay huge amount, you will obviously prefer the Yeah. amenities, right? Yeah. Because that's adding to your body, Life and to lifestyle your as well. lifestyle, right? Yeah. तो ये अब अगर आप हर घर में देखो, ठीक है, जो पहले नहीं हुआ करता था अब टोटली वो चेंज होता जा रहा है। अब लाइफ अब ऐसी हो रही है कि ब्लिंक ऑफ में प्लेस ही चेंज हो गई है, वे ऑफ लिविंग हैज चेंज कम्प्लीटली। तो हॉट टब को जब हम लोग देखते हैं, इट हैज़ टू बी इन अपार्टमेंट्स, in houses everywhere, you know, homes by experience generally we call it, okay? So you don't have to go to the clubs, you don't have to go to the building एक particular place पे ही, if you can utilize the thing, or if you have space, so it has to be there in every house. So that's how it is changing right now, and these things will be mark my words, आज से 10 साल से 15 साल वेट कर लो, ये मोबाइल जैसा ही होने वाला है। जैसे आज हमारे मोबाइल है, वैसे मेंटल वेलबींग वैसे ही होगी हर घर में। और जो जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकता है, जो लोग वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ, चाहे आप बिजनेस समझ लो या चाहे मेंटल वेलनेस समझ लो या फिर रहन सहन, सब चीज़ बदल रही है। तो दिस हैज़ टू ऑल्सो चेंज एंड हैज़ टू कम इनटू आवर डेली लाइफ। सो दिस इज अनअवॉइडेबल। That totally makes sense. हाँ, actually एक और सवाल ये आता है इसके साथ साथ, now that you have given the right definition of how we are emerging, right? सवाल ये आता है जब कोई इन्वेस्ट करता है हॉट टब में, आई एम अज्यूमिंग कि आराम से 8-10 लाख से तो स्टार्टिंग ही होता होगा पोर्टेबल, राइट? है ना, समवेयर अराउंड दैट, राइट? तो इसका लाइफ क्या रहता है, लाइक हाउ लॉन्ग इट लास्ट फॉर, लाइक 10 years, 5 years, or more? It can last for more. तो generally defined life cycle on paper is around 5 years depreciate जो होती है, ठीक है। बट ये इसकी जो क्वालिटी होती है, बिकॉज वी डील विद द यूरोपियन वंस, okay, and they are tested before they are in the market, they are tested obviously in the manufacturer's place, ठीक है। बट उसके अलावा भी स्पेशली जब हम दुबई में लेके आते हैं, एंड दिस इज regulated by the authorities over there, तो वहाँ पे भी टेस्टिंग होती है before it reaches to the end user, तो उसके बाद ही आता है। तो उस टाइम में 5 साल की एनीवेज वारंटी गारंटी जो हम लोग बोलते हैं वो है। बट इसकी एक्चुअल लाइफ साइकिल अगर आदमी देखा जाए तो 10 से 15 साल आराम से जाती है। लाइक आई हैव बीन सर्विंग Dubai market, UAE market, European countries since 2008 until now. And until now it's booming and doing wonders over there. So we have clients कि जिनके इतने साल पुराने हो गए, 15 साल पुराने हो गए, 18 साल पुराने हो गए। तो जनरली जब आप किसी को 18 साल पुराना प्रोडक्ट दे दो ना, तो आपको डर लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, उसको फ़ोन नहीं करो, ऐसे ठीक है, फ़ोन है, हेजिटेशन होता है कहीं ख़राब ना हो। मेरे डे 1 के कस्टमर से भी आज फ़ोन करके आप पूछ लो कि आपको प्रोडक्ट है वहाँ पे अभी भी बचा है कुछ कि नहीं बचा है, वो बोलेगा बचा भी है और मैं बहुत अच्छे से यूज़ भी कर रहा हूँ। तो ये बहुत लंबा चलता है, ठीक है। एंड मेंटेनेंस वाइज देयर इज नो मेंटेनेंस इन दिस, यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ वाटर केमिस्ट्री इज देयर, यू आर चेंजिंग वाटर एवरी 3 to 4 months or sometimes 6 months, तो यू आर सेविंग लॉट ऑफ वाटर एक्चुअली। एंड व्हेन यू जस्ट वांट टू चेंज, लाइक prolong the life of it, just change the water, wipe it and ready to use, like put the water and ready to use again, that's it. You don't need another PhD holder to come and then fix your spa, you don't need it. So that's how easy it is to and was I right with the number? How, is that how it usually cost or more? So what's the range look like? Anywhere between 12,000-15,000 dirhams onwards until 200 to 50,000 dirhams, depending on कि किस साइज का हमने, अगर हम पूल लेके आ रहे हैं
पोर्टेबल पूल इन वेरी वेरी इजी वर्ड्स में, ठीक है, स्विम स्पा लेके आ रहे हैं, तो वो 150,000 के आसपास का आएगा, 6 मीटर, ठीक है, आपको 8 मीटर 10 मीटर 12 मीटर तक का भी आता है, तो उतने में आ जाएगा। पर यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जब आप डायमंड पहन रहे हो ना, तो फिर हम उस डायमंड को उस बेसिक स्टोन से नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू बहुत अलग है। तो दिस इज द मिसकंसेप्शन विच वी हैव इट करेंटली इन थोड़ा सा इंडियन मार्केट में, कि इतना महंगा है। No, I think I look at it from different perspective. जब आप कहते हो कि इसका लाइफ 10 साल है या 15 साल है, to start with, you know, और अगर आप 10 लाख assuming start invest कर रहे हो, it's pretty much the basic math which is कि अगर आप अपने body पे, अगर आप अपने diet पे साल का 3 लाख 2 लाख खर्च कर रहे हो on average, तो ये तो बहुत सस्ता पड़ेगा उस हिसाब से एक्चुअली। तो आपका साल का तकरीबन 80,000 से लाख रुपए का खर्चा आता है, एंड जिसमें आप भी नहीं, आप अकेले नहीं, आपकी फैमिली भी उसको यूज़ कर सकती है, और समटाइम्स फ्रेंड्स एज वेल, राइट? तो दुबई में तो यही है एक्चुअली कि फैमिली यूज़ करती है, फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स भी साथ में सारे यूज़ कर रहे होते हैं, फिर वहाँ पे पार्टियाँ भी होती हैं अच्छी खासी उसमें, ठीक है। एंड जिस घर में ये होता है तो ऑटोमेटिकली योर स्टेटस हैज़ ऑलरेडी रेज्ड, ओके। सो व्हेन समबडी एंटर्स एंड यू हैव अ हॉट टब केप्ट ओवर देयर, ठीक है, किसी ने देखा, सो दे विल नाउ यू ऑटोमेटिकली हैव अ अपर हैंड टू टॉक। दे आर नॉट गोना आस्क यू कि आप कितना क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वंस दे सी दिस दे आर लाइक कि अच्छा, दे कैन इमेजिन द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू आर लिविंग, ठीक है, जस्ट बाय सीइंग अ हॉट टब। यू डोंट नीड टू स्पीक अप अबाउट कि हाँ भाई मैं ऐसा करता हूँ, आजकल ऐसा चल रहा है। दे वोंट आस्क यू ऑल दोस थिंग्स। व्हाट अबाउट स्विम स्पास? स्विम स्पास आर वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि उसमें हॉट टब एंड स्विमिंग दोनों इंटीग्रेट होती है, ठीक है। एंड आपको पूल करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी के भी यहाँ पर, ठीक है। आप अपना ओन स्पा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो घर में, ठीक है। तो आप उसमें जो हॉट टब है एंड स्विमिंग है, दोनों है। एंड दीज थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग विद, आई फॉरगॉट टू मेंशन, ब्लूटूथ speakers, you know, you have a Wi-Fi options given into this, so आप कहीं पे भी रहो, ठीक है, you don't want to spend a lot of money on the electricity whatsoever. आप ऑफिस से निकल रहे हो, just press the button of in your mobile, ठीक है, change the temperature, by the time you're reaching home your jacuzzi is ready to use, ठीक है। and once you set the temperature there, you don't need to keep on changing it. तो सारी चीज़ उसमें ऑटोमेटिक है, एंड आपको कोई हेडेक नहीं है ना। यू डोंट नीड टू किसी बंदे को रखना नहीं है, आपको टेक्नीशियन नहीं रखना, बाहर का आदमी नहीं रखना मेंटेन करने के लिए। आप फरारी घर में रख लो, आप उसको बेबी की तरह संभाल के रखते हैं ना, कि उसके लिए एक अलग से एक बंदा होता है जो उसको क्लीन करता है। रेगुलर बंदे को आप किसी को टच नहीं करने देंगे। पर ये आपके घर में फरारी ही है, बट यू डोंट नीड another person to take care of this. This is like the diamond Kohinoor, you can say everything is there, because it's gonna give you so much of in return. It's not only your status, it's gonna change your lifestyle completely, your family's thinking, and you don't need to spend anything on it. Once you spend, it's khalas, like it's finished, that's it. Interesting. I think I generally had all my questions very well described by you, and I think we've had a very insightful conversation, because मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में, इस मार्केट के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, and I have much more clarity, and in future I genuinely want to own one, you know. I'm telling you. So we have like that very big showroom in Dubai, ठीक है, and especially whenever my clients they want to buy a swim spa, I don't let them buy just by looking. It's a policy, I can say, or it's a rule I have created in my company, that if you're buying a swim spa, let the client experience the swim spa first. He has to experience it, okay, then only he will buy, okay. We have a e-commerce website जहाँ पे ऑनलाइन भी वो लोग खरीद सकते हैं, पर अगर वो खरीदने भी जा रहे होते हैं, when they are paying and they are calling कि अच्छा ठीक है, do you have this available in stock and all, so we directly say, you want to make a payment, just hold on, come and use first, because why it is so important. आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, ठीक है, एक टेस्ट ड्राइव तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल। जब तक आप टेस्ट ड्राइव नहीं करोगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा कि आप ले क्या रहे हो, है ना। तो हमारे
showroom में you can do a test drive of the swim spa, like take a demo. We generally keep around 10 to 15 minutes. ठीक है. अब उसमें क्या होता है, I have so many clients when they are coming, I ask them to bring their families, not alone. ठीक है. Wife, kids, they are coming. So we serve them with lot of chocolates and the drinks and everything. तो when they are enjoying, उनका एक टाइमर है कि सर आपको सिर्फ 10 ही मिनट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, पर रिकॉर्ड है 40 मिनट से पहले कोई निकल जाए तो कोई नहीं निकलता है 40 मिनट से पहले. ठीक है. और वो एक मोमेंट होता है व्हेन दे आर एंजॉयिंग, यू नो, दे आर क्लिकिंग पिक्चर्स, दे आर, वो मेमोरीज होती है. मेरे उस दिन शोरूम में जनरली वी डू इट ऑन संडेज व्हेन वी हैव लेस स्टाफ एंड ऑल, सिर्फ गिगल्स, हंसी मजाक, सिर्फ वही सुनाई देता है और कुछ नहीं सुनाई देता. यू नो, फन डे. दैट संडे इज अ फन डे एक्चुअली इन माय शोरूम, यू नो, फॉर माय क्लाइंट्स. तो दे हैव टू यूज दिस. They do the exercising, they are swimming over there, their kids, their family. ठीक है. बहुत सारे लोग ओल्ड उनके पेरेंट्स को लेके आते हैं, तो दे आर सिटिंग इन दैट पोर्शन, स्पा पोर्शन में, यू नो, दे आर एंजॉइंग. दैट गिव्स द सेंस टू मी कि मैं जो कर रही हूँ ना, आई एम द राइट पाथ. आई डोंट नीड टू डिविएट, क्योंकि somehow आई एम गिविंग द खुशी. ठीक है. दे आर इंटीग्रेटिंग एज फैमिली टुगेदर. तो इससे अच्छा काम और क्या होगा कि आप है ना फैमिलीज को एक साथ लेकर आ रहे हो. ठीक है. आप बंदे को एक साथ लेके आ रहे हो. ठीक है. जिसका माइंड बॉडी इधर उधर, इतना काम करके यार बिलियन डॉलर की आप डील साइन करते हो, इतनी मेहनत करते हो, वो बिखर चुका होता है अंदर से. ठीक है. आप उसको एक कर रहे हो. ठीक है. उसकी पूरी फैमिली को एक कर रहे हो. ठीक है. मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा अच्छा काम मैं कर पाती. तो मुझे it is must to experience one if you haven't. And when you are going to experience, please, if you have family members, bring them also. Enjoy yourself first, then bring them also and let them also enjoy. I'm telling you, जो उसकी surreal feeling आपको मिलेगी ना, उसके बाद आप है ना लिटरली बोलोगे कि ठीक है, मैं अगर currently if I am not, either I need to buy right now, and if I can't afford, let me take it in installment, but I have to have this. बाइक हटा दो या मोबाइल, आईफोन है ना, आपका टाइम ले लेता है पूरा. इट इज ब्रिंगिंग यू बिजनेस, बट इट विल टेक योर life also, but this gives you life. No, definitely. I can't explain my feelings. No, about I it. can surely visualize it, and I can't wait to come to Dubai and experience it next time whenever I'm there. But thank you, Deepika, again for coming and talking about it. I wanted to know about this industry, and not just myself. I wanted everyone who's watching to know about it, and in future we will have it all part of our lifestyle. So why not to know about it? True, Thank you again. Thank you for coming. Thank you so much, Ayush. Take care.